The world is these days moving from multilateralism to bilateralism, or you can say free trade to protectionism. So the question is about this transition, like the world is transitioning from free trade and multilateralism. ये पहले था. It is changing towards protectionism and bilateralism. So because of this transition phase, because of this shift, what are the challenges that the Indian economy is going to face? So the question is asking you to identify those challenges, particularly in context of Indian economy. First thing you should understand what is the meaning of multilateralism, bilateralism. Multilateralism, when multiple parties are involved, be it in suppose some kind of trade agreement in which multiple countries are involved. For example, suppose 10 countries or 15 countries came together and agreed in some sort of agreement कि हम लोग आपस में इस टर्म्स में आपस में ट्रेड करेंगे. So because there are multiple countries, so that will be called multilateralism, as opposed to this, suppose only two countries, for example India and England, came together, they entered into an agreement कि हम लोग दोनों आपस में इन टर्म्स में ट्रेड करेंगे, व्यापार करेंगे. So that will be called bilateralism because it is bi means two. Free trade means everyone is free to trade with each other without any kind of restriction. Restriction could be related to tariff barrier, non-tariff barrier, quotas, anything. Protectionism is opposed to free trade. Protectionism means a country is trying to protect its own companies. अपनी जो डोमेस्टिक कंपनीज है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए द कंट्री इज इम्पोजिंग सर्टेन टैक्सेस कि जो बिकॉज ऑफ दोज टैक्सेस the products of foreign companies are becoming costlier in the domestic market so that the domestic companies can have an edge. So this is something called protectionism. So these are the basic terms. अगर ये basic terms का आपको मतलब पता है, you can certainly write a very good answer. But one of the major mistakes that aspirants have committed is that they went on writing about the global context. But the question is particularly talking in terms of Indian economy. तो इंडियन इकोनॉमी पे फिक्स करके आपको अपना आंसर लिखना था to make the answer contextually relevant. Second part of the answer is how these challenges can be met. Means the second part is asking you to write way forward kind of. पहले में आप challenges बता दीजिए and then you write about way forward. अब इसको लिखना कैसे है? How a good answer could be written for this question? First is that take it this way. आप एक रुमाल बनाते हैं. आप इंडियन कंपनी है, आपने एक छोटी सी फैक्ट्री डाली है, एक सिलाई मशीन का सेंटर डाला है जहां से आप रुमाल बनाते हैं, हैंकरचीफ. इंडिया से यू आर एक्सपोर्टिंग दैट हैंकरचीफ टू यूएस. अब ये जो आपने रुमाल बनाया इसको आप यूएस भेजना चाहते हैं और यूएस में सिर्फ आप ही तो भेज नहीं रहे, आपके बगल से बांग्लादेशी भेज रहा, उधर से वियतनाम भी भेज रहा. ठीक है, ये सारे लोग भेज रहे हैं और भी कंट्रीज यूएस को एक्सपोर्ट कर रही हैं. सो व्हाट हैज बीन द सीन इन द फ्री ट्रेड regime under World Trade Organization starting from 1990s? What has been the scene that countries were free to trade. So यूएस ने रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया, इंडिया को जैसे अपना माल बेचना है आओ भाई बेचो हमारे यहाँ. तो फ्री ट्रेड था बिकॉज द WTO सिस्टम वाज बेस्ड ऑन मल्टीलेटरलिज्म. सारे कंट्रीज एक साथ आकर के फ्री ट्रेड को लेकर के उन्होंने एग्रीमेंट किया था कि विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन वी शुड बी ट्रेडिंग. देयर यूज्ड टू बी रिस्ट्रिक्शंस सर्टेन काइंड ऑफ, बट उतना डीप डाइव करने की जरूरत इसको आंसर में नहीं है. तो आप मान के चलिए कि आपने एक रुमाल बनाया, रुमाल यू आर एक्सपोर्टिंग योर हैंकरचीफ टू यूनाइटेड स्टेट्स. बाद में क्या हुआ कि यूएस की कंपनीज ने रियलाइज किया कि भाई साहब इंडिया से रुमाल तो आ रहा है, बट यूएस की कंपनीज अगर सॉक्स बेचना चाह रही हो इंडिया में तो दे आर नॉट एबल टू सेल. व्हाई? यूएस की कंपनीज अगर सॉक्स बेचना चाह रही है, मतलब आपके पैर के पांव के मोजे अगर बेचना चाह रही हो तो इंडिया में इट इज नॉट इजी टू सेल बिकॉज इंडियन कंपनीज
Indian, it is very costly for US companies to sell in India because Indian US companies के प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं, तो इंडिया में वो सेल नहीं कर पा रहे और इंडिया में जो है सस्ती सस्ती चीजें मिल जा रही हैं। तो यूएस ने क्या सोचा कि भाई हम तो इंडिया से फ्री में, इंडिया को फ्री मार्केट दे दिया, बट इंडिया इज नॉट अलाउइंग अस टू ट्रेड फ्रीली। इंडिया ने यूएस के प्रोडक्ट्स के लिए ज्यादा अच्छे से मार्केट का सीन क्रिएट नहीं किया, कॉम्पिटिटिव मार्केट नहीं बनाया, ताकि यूएस कंपनीज भी आसानी से अपने प्रोडक्ट्स इंडिया बेच सकें। सो टू टेक अ रिवेंज, यूएस केम विद सम काइंड ऑफ ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस। यूएस ट्रेड रिस्ट्रिक्शन लेकर के आया कि अगर इंडियन कंपनीज यूएस में रुमाल बेचती हैं तो उनको 10 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, उनके रुमाल के कॉस्ट 10 रुपये एक्स्ट्रा हो जाएंगे, सो दैट दे कैन टेक अ रिवेंज कि यूएस में जो बाकी यूएस के जो प्रोडक्ट्स हैं दे कैन सेल कॉम्पिटिटिवली यूनाइटेड स्टेट्स एंड ऑल्सो टू टीच इंडिया लेसन, जो कि आजकल चल भी रहा है। सो कंसिडर दिस एज एन ओवरऑल सिनेरियो जिसमें यू कुड हैव फ्रेम्ड योर एंटायर आंसर। तो अभी इस एग्जाम्पल से आप अगर लेकर के चलें तो व्हाट आर द चैलेंजेस? यूएस रिजॉर्टेड टू प्रोटेक्शनिज्म, और सपोज यूएस entered into a trade agreement with Bangladesh, a bilateral trade agreement with Bangladesh, that okay sir, from Bangladesh you sell your handkerchief to US, we will sell it cheaper as compared to Indian handkerchiefs. तो इस केस में what are the challenges that Indian companies will face, Indian economy will face? Very simple, the first challenge they will face is of competitiveness. competitiveness तो हो जाएगा कम, बिकॉज अगर पहले वही रुमाल $10 में यूएस में बिकता था और बांग्लादेश ने रुमाल भेजना शुरू किया और बांग्लादेश का रुमाल वहां $5 में बिकने लगा फॉर एग्जाम्पल, तो ऑब्वियस सी बात है इंडियन प्रोडक्ट्स की कॉम्पिटिटिवनेस मार्केट में कम हो जाएगी। एक दूसरी चीज हो सकती है इसमें कि जो इंडिया के जो ट्रेड के जो प्रोस्पेक्ट्स होंगे दैट विल ऑल्सो गेट इंपैक्टेड। सो ट्रेड डाइवर्जन का केस सीन हो सकता है। ट्रेड डाइवर्जन मतलब earlier suppose India was heavily dependent on US trade because US is one of the biggest export trade partner of India, but अगर US ने protectionism जैसी सीन लेकर के आया तो obvious सी बात है इंडिया will be forced to divert its trade. So trade diversion के लिए इंडियन इकोनॉमी को बहुत चैलेंज करने पड़ेंगे। US जैसा उसका एक सप्लीमेंट ढूंढना इट इज क्वाइट चैलेंजिंग। देन बियॉन्ड लाइक रुमाल का तो जस्ट हमने एग्जांपल दिया था। इंडियन इकोनॉमी केस में जो मेजर है वो है आईटी सर्विसेज, आईटी एनेबल्ड सर्विसेज जो भी हैं, इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड सर्विसेज। आईटी सर्विसेज का यूएस में बहुत बड़ा मार्केट है। तो इफ यूएस रिजॉर्ट्स टू एनी काइंड ऑफ प्रोटेक्शनिज्म, certainly it is also going to impact IT services because IT services से रेमिटेंसेस एवरीथिंग कनेक्टेड है। अब इन चीजों को कनेक्शन एस्टेब्लिश करके आपको लिखना होना चाहिए। और क्या चैलेंजेस फेस कर सकती है इंडियन इकोनॉमी? अगर प्रोटेक्शनिज्म एंड बायलैटरलिज्म इज ऑन हाई, इज ऑन पीक, डोंट यू थिंक दैट देयर विल बी ग्लोबल वल्नरेबिलिटी, ग्लोबल वल्नरेबिलिटी फॉर इंडियन इकोनॉमी? कैसे ग्लोबल लेवल पर इंडियन इकोनॉमी की वल्नरेबिलिटी कैसे होगी? तो कुछ ऐसे होगी कि अगर यूएस इज आवर बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर और अगर यूएस ने ही कुछ इंपैक्ट करा, कुछ ऐसे पॉलिसीज ली जिससे कि इंडिया का एक्सपोर्ट इंपैक्ट कर रहा है नेगेटिवली, तो ऑब्वियस सी बात है इंडियन इकोनॉमी की अर्निंग्स कहीं ना कहीं इंपैक्ट होने वाली हैं। उसकी वजह से इंडिया का से इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स, ग्लोबल चीजों में इंडिया के जो तो ग्लोबल चीजों में जो इंडिया का जो से है दैट विल ऑल्सो गेट इंपैक्टेड। यू कैन कनेक्ट इट विद रशियन ऑयल, जो रशियन ऑयल परचेज का जो मैटर चल रहा है अभी, सो दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ ग्लोबल वल्नरेबिलिटी। ये जो प्रोटेक्शनिज्म का एंटायर कॉन्सेप्ट यूएस में जो इंप्लीमेंट हो रहा है, दैट इज कहीं ना कहीं रिलेटेड टू एक्सपोजिंग इंडियाज वल्नरेबिलिटी कि भाई आप रशियन ऑयल ले रहे हो, हमारी बात मान नहीं रहे हो, तो लो आपके साथ हम ज्यादा अच्छे से बिजनेस कर नहीं पाएंगे। So this is obviously, this protectionism, bilateralism is obviously related to, can also easily be connected to global vulnerability of Indian economy. तो इस तरीके से कुछ basic challenges आप दे सकते थे। And very simple question was asking, the directive was what are the challenges? Question was not asking you to discuss the challenges.
क्वेश्चन वाज नॉट आस्किंग यू टू एग्जामिन द चैलेंजेस. तो व्हाट आर द चैलेंजेस का मतलब एज मेनी चैलेंजेस एज यू कैन लिस्ट आउट. और हर चैलेंजेस को अगर आपने दो दो तीन तीन वर्ड में एक्सप्लेन कर दिया और लिख दिया विद एस्टैब्लिशिंग द रिलेशन विद प्रोटेक्शनिज्म एंड बायलैटरलिज्म, तो आपका काम खत्म हो जाता. बट वन ऑफ द वेरी मेजर मिस्टेक दैट स्टूडेंट्स हैव कमिटेड व्हाइल राइटिंग एन आंसर टू दिस क्वेश्चन is that they will go on elaborating they will go on examining the challenges कि भाई साहब प्रोटेक्शनिज्म क्यों हो रहा है, प्रोटेक्शनिज्म का इम्पैक्ट क्या हो रहा है. they will go on writing examining the challenges, but the question is simply asking you what are the challenges. तो चैलेंजेस का एक लिस्ट दे सकते थे, हर चैलेंजेस को दो दो तीन तीन पांच पांच 10 वर्ड में अगर एक्सप्लेन कर देते हैं तो आपका काम हो जाता. सेकेंड पार्ट ऑफ द आंसर इज वे फॉरवर्ड. तो क्वेश्चन ने आपसे पूछा वे फॉरवर्ड ही बताइए भाई साहब, बिकॉज हाउ दीज चैलेंजेस कैन बी मेड. कैसे चैलेंजेस को कैसे हम टैकल कर सकते हैं. बहुत सिंपल सा है. चैलेंजेस को अगर आप टैकल करना चाहते हैं तो अपनी कॉम्पिटिटिवनेस इंप्रूव कीजिए. जब भी whenever you have encountered a question in which you are like supposed to write way forward, जितने भी चैलेंजेस हैं उन्हीं को कन्वर्ट करके वे फॉरवर्ड आप बना सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल challenges है कि इंडिया की कॉम्पिटिटिवनेस इंपैक्ट करेगी, तो कन्वर्ट इट एज अ वे फॉरवर्ड दैट इंडिया शुड वर्क, इंडियन कंपनी शुड वर्क ऑन टू इंप्रूव देयर कॉम्पिटिटिवनेस, सो दैट अगर इंडियन प्रोडक्ट्स $2 अगर महंगे भी हैं फिर भी कंज्यूमर सोचें कि प्रोडक्ट्स की क्वालिटी अच्छी है, इट इज वर्थ स्पेंडिंग $2 मोर. तो कॉम्पिटिटिवनेस पे इंडिया को फोकस करना चाहिए. ट्रेड डाइवर्जन, सो आप इसको भी एक वे फॉरवर्ड में कन्वर्ट कर सकते थे. लाइक Indian companies should look for their more better trade partners, should enter into bilateral trade agreements. For example, आप UAE, UK एंड ऑस्ट्रेलिया का एग्जाम्पल दे सकते थे. रिसेंटली ट्रेड एग्रीमेंट्स इनके साथ हुए हैं बायलैटरलिज्म के साथ, बायलैटरलिज्म के अंदर. तो लाइक if Indian economy is facing challenges amidst the lack of multilateralism, then obviously to handle that Indian government should enter into bilateral trade agreements so that diversion of trade is minimized or managed properly. Global vulnerability. To handle global vulnerability, you should be writing about enhancing, Indian government should enhance its partnership among its traditional partners, and also you write about strengthening the multilateral trade forums, for example World Trade Organization. तो अगर World Trade Organization है तो उसको कैसे strengthen करना है, that may also act as a way forward. तो इस तरीके से 4-4, 5-5 पॉइंट अगर आप दे देते, and then you could have written a conclusion that amidst the concerning rise of protectionism and bilateralism, it is very important for India to handle the challenges effectively and judiciously, so that Indian economy, the challenges faced by Indian economy can be handled properly. ऐसे करके आप एक छोटा सा conclusion दे सकते थे. And this way you could have written an answer which is contextually relevant as well, and obviously which when I keep highlighting about writing proportionate answers, तो दोनों पार्ट के आंसर को, part 1 and part 2, should be proportionately written in the answer. Like suppose you are writing first part in 50-60 words, तो second part should also at least be 40-50 words, ताकि दोनों पार्ट proportionately written हो. तो this way you could have written a contextually relevant answer and also proportionate answer, means equivalent numbers of words and space is devoted to all the parts of the question. See you in next session.